Hello everyone, so today we will learn types of sets. So here there are four types of sets. First is singleton set. Singleton set means a set containing of a single element is called a singleton set. Means in this only one element will be there, इसमें एक ही element रहेगा, it is called as a singleton set. For example, A is equals to set 2. Second set is empty set or null set. Here it is called as empty set or null set. दो नेम है, कभी कभी empty set बोलते हैं, कभी कभी null set. So if there is not a single element in the set which satisfy the given condition, it is called a null set or an empty set, and it is denoted by phi. ये सिम्बॉल से डिनोट होता है, मीन्स इसमें एक भी सेट नहीं होगा, वो खाली एम्प्टी रहेगा. एंड इट इज फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल्स टू लाइक दिस एम्प्टी, or it is denoted by this symbol, it is called as a phi. Next is third is finite set. Finite set means if number of elements are limited and countable, it is called as a finite set. Means in that set वो countable number रहेंगे, इसी that's why it is called as a finite set. For example 4, 8, 12, 16, 20. We can count 1, 2, 3, 4, 5. So it is finite set. Last is infinite set. If number of elements in a set is unlimited and uncountable, it is called infinite set. Means इसमें वो हम count नहीं कर सकते, uncountable है और उसकी कोई limit नहीं है. So for example d is equals to 1, 2, 3 dot 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 means it is they are natural number. So dot dot dots mean uncountable till infinity. Then after that next topic is equal set. Equal sets means if two sets contain exactly the same elements, then these sets are called equal set. Means ऐसे दो सेट्स रहेंगे जिसमें सेम एलिमेंट रहेंगे, सेम नंबर या सेम लेटर्स, then that two sets are called equal set. So first if you will see A is equals to X such that X is a letter in the word life. Now see in this word life, LIFE. Now in second B set Y such that Y is a letter in the word file. Now here also LIFE, here LIFE means उल्टा सीधा इन दोनों में भी सेम ही लेटर्स है. So that's why the sets A and B contain the same element. So A and B both are equal set. अगर उसमें सेम एलिमेंट नहीं रहता है सो वो अनइक्वल मीन्स यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाता है, वो नॉट इक्वल सेट हो जाता है. नाउ वी विल सी टुवर्ड एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन हियर, दिस इज आवर प्रैक्टिस सेट सेकेंड. सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट. जस्टिफाई योर आंसर. मीन्स यहाँ देखना है कि कौन से इक्वल सेट है या नहीं. So first A, second B, third C. We'll compare all three and we will decide. So I solve here. First question is, first set is given A set. So A set is, क्वेश्चन में देखे है ये, x such that 3x minus 1 is equals to 2. तो ये सेट देखे हैं, यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये जो इक्वेशन होता है वो लिखो. देन माइनस 1 विल गो दैट साइड, विल बिकम्स 2 प्लस 1, देन 3x इज इक्वल्स टू 3. सो x इज इक्वल्स टू 3/3, वी विल गेट 1. सो x वैल्यू वी गॉट 1. सो इसमें कौन सा है, वन एलिमेंट x की वैल्यू 1, मतलब एक ही एलिमेंट है 1. सेकेंड, इफ यू विल गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1 and second set B is given in your question में देखे हैं B set x such that x is a natural number but x is neither prime नॉर कंपोजिट. सो यहाँ पे हमें ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढना है जो नेचुरल नंबर है बट वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर. एंड वी नो दैट ऑलरेडी वी स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड, ओनली वन इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सो हियर
we'll get that x value x is equals to 1. Now see, B set is also only containing one element. Then if you will see third set which is given in your question, x such that x belongs to capital N means natural number, comma x लेस दैन 2. अभी यहाँ पे हमें ऐसे नंबर देखना है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करती है एंड इट शुड बी लेस दैन 2 और नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 से स्टार्ट होता है 1 2. अब हमें 2 से छोटा चाहिए तो 2 से छोटा ओनली 1. 1 इज़ ओनली वन नेचुरल नंबर विच इज़ लेस दैन 2. सो इसमें भी ओनली एक ही एलिमेंट आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि वो 2 से छोटा है और वो नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1. ज़ीरो नहीं ले सकते क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है. सो दिस आई विल पुट एज इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम इक्वेशन वी कैन राइट फ्रॉम equation 1 2 and 3 what we can write, the sets A, B and C are equal sets because all containing only one element. Equal set because they contain the same element as 1. So this is the answer of first question. You can take screenshot. Very easy. First, whenever question you have to solve, if equation is there you solve, and here according to question you have to write the answer. Here also condition is given that x value should less than 2 means only 1 is in natural number which is less than 2. सभी में only one number है. So these three are equal sets. So now you have to solve this question number 2 same like this only. Decide whether set A and B are equal set. Just give रीज़न फॉर योर आंसर. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है. ए इवन प्राइम नंबर हमें पता है सभी को कि 2 इज़ ओनली वन इवन प्राइम नंबर. और यहाँ पे इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू जो मिलेगी, अगर दोनों का आंसर सेम आता है सो इक्वल सेट्स, अगर नहीं आता है सो नॉट इक्वल सेट. देन थर्ड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट मीन्स खाली रहेगा तो एम्प्टी सेट, और वाई रीज़न बताना है. सो फर्स्ट वी विल सी क्वेश्चन थर्ड वन. Now we will see third one answer. A is equals to A such that A is a natural number smaller than 0. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है. अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, सो उसमें ज़ीरो तो आएगा ही नहीं. और यहाँ पे बता के कि वी हैव टू टेक लेस दैन 0. जब ज़ीरो ही नहीं आ रहा है तो हम लेस दैन 0, वो एम्प्टी सेट हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है. सो हियर वी विल राइट इन आंसर there is no natural number less than 0. जब उसमें ज़ीरो नहीं है तो उसमें लेस दैन 0 नहीं रहेगा. सो देयरफॉर वी कैन राइट ए सेट इज़ एन एम्प्टी सेट, खाली है. दैट इज सेट ए इज़ एन empty set. Okay, so this is our first answer. If you will see second one, second question is here, x such that x square is equals to 0. So we will solve. B is equals to x such that x square is equals to 0. अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन है. इक्वेशन मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो विल राइट x square is equals to 0. आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर चला जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही आता है. सो यहाँ पे हमारा ज़ीरो मिला. नाउ यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़ीरो है, एम्प्टी तो नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट. सो हियर वी विल राइट सेट बी हैज़ एन एलिमेंट ज़ीरो. उसमें बी सेट में एक एलिमेंट है ज़ीरो, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट ए एम्प्टी सेट. So therefore set B is not an empty
set. So like this, and if you have to solve this third one by yourself. Third question, c is equals to x such that 5x minus 2 is equals to 0 comma x belongs to n. मीन्स आप लोग को ये इक्वेशन सॉल्व करना है. देन इसकी जो भी वैल्यू रहेगी अगर वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करती है सो यस, मीन्स वन से अगर वन से इन्फिनिटी तक आएगी तो यस बोलना, और फिर बताना कि वो एम्प्टी सेट नहीं है. अगर वो ज़ीरो कुछ या एक भी नंबर नहीं आएगा, एक ना एक नंबर आएगा, सो वो नॉट एम्प्टी सेट. अगर वो फ्रैक्शन भी सपोज बाय चांस फ्रैक्शन आता है तो वो भी नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज वो रैशनल नंबर में चला जाएगा. सो अगर सिंपल वन डिजिट का आंसर आएगा तो वो नेचुरल नंबर, अगर कुछ फ्रैक्शन इसका आंसर रहता है वो तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा. इसका मतलब वो एम्प्टी सेट हो जाएगा. सो सॉल्व योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट मीन्स जिसका आंसर आता है जो लिमिटेड है, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट रहेगा. और इनफाइनाइट मीन्स विच इज़ अनलिमिटेड एंड विच इज़ अनकाउंटेबल, दैट इज इनफाइनाइट. सो वन बाय वन विल सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज a is equals to x such that x less than 10. x is a natural number, so we'll solve here. Fourth one, a x such that x less than 10. x is a natural number. अब यहाँ पे क्या कंडीशन देखे कि x वैल्यू शुड लेस दैन 10, 10 से लेस, और वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए. तो 10 से लेस मीन्स 1 से लेके 9 तक, एंड ऑल आर नेचुरल नंबर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल कम a is equals to set 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये इसका आंसर हो गया है. और ये काउंटेबल है, काउंटेबल मीन्स लिमिटेड है. सो ये कौन सा सेट हो गया है? फाइनाइट सेट. सो देयरफॉर सेट ए इज ए फाइनाइट set. Now second question, if you will see, second question is y such that y less than -1 comma y is an integer. So second question देखेंगे b सेट का. सो यहाँ बता के कि y की वैल्यू जो है वो लेस दैन -1 है और y इज़ इंटीजर. अब इंटीजर मीन्स इंटीजर के सेट में कौन कौन से आते हैं? 0 +-1 +-2 मीन्स पूरे राइट साइड की पॉजिटिव वैल्यू स्टिल इन्फिनिटी एंड 0, एंड लेफ्ट साइड पूरी निगेटिव वैल्यू. बट यहाँ बता के है कि वो y की वैल्यू सभी -1 से लेस. -1 से लेस मीन्स सपोज इफ़ आई विल ड्रॉ हियर नंबर लाइन 0 -1 -2 -3 डॉट 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 मीन्स ये अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे सो यहाँ पे जितना हम ये साइड जाएंगे सभी नंबर्स -1 से लेस रहेगी. ये साइड जब हम जाते जाएंगे ये सभी वैल्यू -1 से लेस है. सो यहाँ कंडीशन में हमें -1 से लेस वाली पूरी चाहिए इंटीजर्स. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -2 -3 -4 टिल इन्फिनिटी. सो हियर इन आंसर इट विल कम b is equals to, if I'll write from here, -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम ये निगेटिव साइड में जा रहे हैं. सो लाइक दिस इट विल कम. और ये कौन से हैं? डॉट 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 मीन्स टिल इन्फिनिटी, हमें उसकी लिमिट नहीं पता है, अनलिमिटेड है. सो इट इज़ इनफाइनाइट. सो हियर आई लेट देयरफॉर सेट b is an infinite set. So here similarly you can take this screenshot of this answer and previous answer also. Similarly you have to solve question 3 4 5 6 7. इट इज़ वेरी इजी. क्वेश्चन में है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास लिमिटेड रहता है ये.
फाइनाइट आ जाएगा। देन सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, विलेज के भी हम पीपल काउंट कर सकते हैं, सो ये भी फाइनाइट आ जाएगा। देन सेट ऑफ एपरेटस, ये भी हम एपरेटस भी काउंट कर सकते हैं लेबोरेटरी के, सो इट विल आल्सो कम फाइनाइट। देन सिक्स वन इज सेट ऑफ whole नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 डॉट 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 वी डोंट नो, सो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। सेवन्थ इज सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी हमें नहीं पता है उसकी लिमिट कहाँ तक है, सो डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट आएगा। So here like this you have to solve. So this exercise is completed here. Thank you.